good afternoon to all of you. I'm Vikram Grewal, AIR 51 in Civil Services Examination 2018. I'm here to discuss my strategy for the essay paper. I scored 161, which I'm being told is quite a good score this year. So we'll just introduce ourselves with the subject of essay as per UPSC demands. And essay का क्या होता है कि it's basically an exam which gives you a lot of scope, lot of scope for originality, for content, for putting forward your point in a different way. And इसका कोई set pattern तो है नहीं, syllabus है नहीं, तो फिर हर candidate की अपनी strategy हो सकती है इसमें. और how I approached this exam was basically to divide the essay paper in basically two parts. One was the content and the other was the presentation. तो content का I'll get back to it, पर presentation का मैंने ज़्यादा focus इसलिए किया क्योंकि like many candidates my handwriting was not that good and I had to space my sentences according to the demand of the examiner mostly. And presentation में I just kept focused on writing 2 paragraphs per page and in total 20 paragraphs so that it covers your 1000 to 1200 words. वो back of my mind static था. Every time consistently I wrote 20 points whenever I saw the title of an essay, and I made a mental framework for 15 minutes, and then I wrote for like 1 hour, 1 hour 15 minutes में essay खत्म किया. The most important is to plan those points in the initial 15 minutes, 15 to 20 minutes. और फिर आपके पास बहुत टाइम होता है essay में, आप काफ़ी टाइम ले सकते हो देखने में कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बेस्ट है और उसके हिसाब से आप अपना प्लान आउट कर सकते हो. Regarding presentation, as I said, कि 2 paragraphs per page and 2 paragraphs should end on the same page and every paragraph should talk about something new, not unrelated to the topic, going with the flow, or at least 2 keywords or references should be there in every paragraph. ये तो बहुत ही mathematical approach है. ये सिर्फ presentation के point of view से है. When it comes to content, my strategy was having absolutely no strategy, because approach every title with a freshness in mind. आपको मज़ा आना चाहिए लिखने में कि अच्छा ये टॉपिक देखा है, शायद मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो लिखने की कोशिश करता हूँ, मज़ा आएगा. उस हिसाब से मैंने अप्रोच किया. I attempted just 5 mock tests in the entire year. Other than that, I didn't go for separate practice for essay, क्योंकि anyways you are gaining knowledge when you are studying for general studies papers. तो essay का practice सिर्फ 5 tests in a year, which is very less, but at the back of my mind, whenever you come across a topic in daily life और आपको लगता है ये आ सकता है current affairs में, तो आप mental map बना सकते हो दिमाग में 15 मिनट सोच के कि अगर मुझे ये ऐसे आ गया, ये टॉपिक आ गया, तो मैं क्या लिखूँगा. Also, when it comes to content, as I said, I had absolutely no strategy. I approached it with a different frame of mind every time. For example, एक philosophical essay लिखना है, तो उसका mind frame अलग है, और it depends on the title and it depends on what your thoughts are at that point of time. और अगर कोई technical essay है तो काफ़ी मदद GS की knowledge से हो जाएगी आपको, and you don't have to be very rigorous about it. But the perspective that changes your essay and brings more originality and changes the game entirely for you is when you consider essay कि आप examiner से एक तरह से बात कर रहे हैं, कि आप 20 पॉइंट बताएंगे एग्जामिनर को और इस टाइटल के रिगार्डिंग आप यही 20 पॉइंट पुट फॉरवर्ड करेंगे. इंट्रोडक्शन में ये 5 पॉइंट, ये 4 पॉइंट होंगे और बॉडी में इतने पॉइंट्स होंगे और कंक्लूजन आप इस तरह से उसे शेप करेंगे. कॉन्वर्सेशन, एग्जामिन, डोंट ट्रीट इट एज एन एग्जाम, एज अ वन वे ट्रैफिक, ट्रीट इट एज अ कॉन्वर्सेशन. तो when I attempted all these 5 mock test series with GS Score, I did it, and I also consciously made the decision कि एग्ज़ाम से एटलीस्ट 3 हफ्ते पहले मैं बिल्कुल ऐसे नहीं लिखूँगा, कोई प्रैक्टिस नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रेश माइंड होना चाहिए उस टाइम और बहुत ही ओरिजिनलिटी के साथ लिखना चाहिए. बिकॉज
knowledge is almost same with every candidate, and what depends, marks basically depend on being different and being reasonable and thorough with the title. तो फिर जैसा आप टाइटल को इंटरप्रेट करते हो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये एक कॉन्वर्सेशन बनाना है. तो एग्जामिनर, चाहे आप साइंस एंड टेक का टॉपिक आप उस पे ऐसे लिख रहे हो, तो आपको एग्जामिनर को इस तरह से समझाना है कि उसे चाहे कुछ ना आता हो साइंस एंड टेक से, लेकिन उसे आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए. तो बहुत ही जनरल आउटलुक होना चाहिए. यू शुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि जीएस पेपर नहीं है, और पॉइंट फॉर्म और हेडिंग वगैरह ये मैंने किया नहीं. मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा, टाइटल लिखता था और सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग में अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस दैट यू गिव इन एवरी पैराग्राफ. एज आई सेड, 2-3 रेफरेंस दे देता था मैं, तो अंडरलाइन कर देता था कि ये कोट किसकी है और ये कौन सी बुक या मूवी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. Many people think कि पॉप कल्चर के रेफरेंस नहीं दे सकते. यूपीएससी बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है जो एसए को बहुत ही प्रोफेशनली अप्रोच करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने मूवीज़ के बहुत एग्जांपल्स दिए हैं अपने एग्ज़ाम में. फॉर एग्जांपल, I wrote an essay on the final day on it was something like the past is a permanent dimension of the human consciousness and values. तो द पास्ट के डायमेंशन को मैंने टाइम के डायमेंशन के थ्रू एक्सप्लोर किया, और मैंने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स का एग्जांपल दिया, जैसे डंकर्क और इंटरस्टेलर, कि टाइम को वो कैसा ट्रीट करता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे दिखाते हैं. स्पेशली इन डंकर्क व्हेन ही शोज दैट टाइम इज बेसिकली रिलेटिव, वीकली टाइम, डेली टाइम और टाइम पर आवर के डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं. तो बेसिकली आपको इलस्ट्रेट करना आना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप एक आर्ग्यूमेंट दीजिए जो टाइटल से रिलेटेड हो और आप उसे जस्टिफाई कीजिए, उसे इलस्ट्रेट कीजिए, कोट्स यूज़ कीजिए. कोट्स का एक और फंडा था कि मैं लैपटॉप जब यूज़ कर रहा था तो गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन होता है कोट्स का. आप जब भी लैपटॉप खोलेंगे तो आपको एक नई कोट दिखेगी, चाहे वो इंस्पिरेशनल हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम में. ऐसे काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस ले सकते हो आप कोट कलेक्ट करने का. इंडियन एक्सप्रेस की एक कोट आती है ओपेड पेज पे स्टार्टिंग में, अगर वो आपको अच्छी लगे तो आप कलेक्ट कीजिए. लेकिन कोट्स में ये है कि यू हैव टू बी केयरफुल चूजिंग दोज कोट्स विच कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल essays. For example, there's a quote by Edmund Burke कि those who do not learn from history are tend to repeat it. तो ये बहुत ही सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकती है. गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, इन सब की कोट्स बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकती है. तो आप उन्हें अलग लिख लीजिए अगर आप कोट करना चाहते हैं और ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं अपने ऐसे की. तो कोट्स का तो मैं ये समझूंगा. और स्टेटिस्टिक्स, डेटा एटसेट्रा, एवरीथिंग यू ऑलरेडी हैव बिकॉज ऑफ द जीएस प्रिपरेशन. Now I come to the one of the most important issues regarding essay कि टॉपिक चूज कैसे करें, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास सेक्शन ए में, 4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास सेक्शन बी में. तो पहले तो आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कि मैं टेक्निकल ऐसे ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ या फिलोसफिकल और सब्जेक्टिव ऐसे ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ. तो मेरे साथ ये था कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अटेम्प्ट technical objective type titles for essays, I tend to move towards philosophical or subjective topics so that I can explore them in a better way. Also क्योंकि philosophical essays आपको बहुत ज़्यादा range देते हैं, आप interpret काफ़ी तरह से कर सकते हो और justify अपनी काफ़ी तरह से कर सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस ईयर एसए में मैंने अटेम्प्ट किया था, सेक्शन ए में 3 टेक्निकल टॉपिक्स थे, एक बॉर्डर सिक्योरिटी पे था, एक क्लाइमेट चेंज पे था, थर्ड आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने अटेम्प्ट किया था अ गुड लाइफ इज़ वन दैट इज़ इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज. तो इसमें इतने सारे कीवर्ड्स हैं. एक गुड लाइफ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अलग से, नॉलेज है जो आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, और लव है जिसकी अलग अलग डेफिनेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो. तो इसमें चैलेंज रहता है कि हाउ टू रिमेन ट्रू टू द टॉपिक.
हर पैराग्राफ में आप ऐसी कोई लाइन एंड में या स्टार्टिंग में लिखिए कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कहीं भटके नहीं हैं, आप यू आर टेथर्ड टू द टॉपिक, यू रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द टॉपिक, दो यू आर एक्सप्लोरिंग वेरियस डिमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल एक पिज्ज़ा है आपके पास जो आपका टॉपिक है, बस आपको वो डिवाइड करना है इतने पीसेस में, आप बिल्कुल भटकिए ना, उसी की परतें आप जांचते रहिए और डीप में जाइए, पर डिविएट मत होइए टॉपिक से। तो दैट्स वन चैलेंज। अदर क्वेरीज आर दैट फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं या नहीं, तो मैंने तो किसी में फ्लो चार्ट्स बनाए नहीं थे, पर इफ इट इज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन इलस्ट्रेटिंग द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग, तो पक्का फ्लो चार्ट्स बनाइए। अगर बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है कि ये यूज़ हो सकता है और आपका इससे बेटर हो सकता है, तो आप यूज़ कीजिए, उसमें कोई गलत है नहीं। तो बेसिकली व्हाट पॉइंट आई वांट टू मेक एज द कंक्लूजन इज कि अप्रोच ऐसे विद अ फ्रेश माइंड, कि आपको लिखने में मज़ा आए। ये मत देखिए कि ये मुझे ज़्यादा नंबर दिलाएगा, कम नंबर दिलाएगा, क्योंकि यूपीएससी की मार्किंग यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ऑनेस्टली। तो आप उस टॉपिक को चूज़ कीजिए जो आपको लिखने में मज़ा आए, 1.5 घंटा आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आए, और उसी हिसाब से अपना मेंटल फ्रेमवर्क बनाइए। 15 मिनट यूज़ कीजिए पॉइंट्स लिखने में, और 1.5 आवर्स, मोस्टली 1 hour 15 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए लिखने में, और फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपने एक ऐसे चूज कर लिया है, एक टाइटल, तो सिर्फ उसी के बारे में सोचिए। वो जो 3 ऑप्शंस आपने छोड़ दिए हैं, उनके बारे में आप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए, क्योंकि आपको ऐसे उसी पे ही लिखना है। तो कंफ्यूजन से बच के रहिए उन 3 घंटे में, ये बहुत मैटर करता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, डू नॉट प्रैक्टिस टू मच, बिकॉज ऐसे में ओरिजिनलिटी के ज़्यादा मार्क्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर इस साल का देखें तो गुड लक टू यू ऑल, अप्रोच इट विद अ फ्रेश माइंड, दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच।